नेक्स्ट टाइप ऑफ कंटिन्यूस सीरीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। अरिथमेटिक मीन में भी काम आएगा ये पार्ट, मीडियन में भी काम आएगा ये पार्ट, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट continuous series was one of the most important part of this chapter. उसका most important part cumulative frequency series। दो टाइप की सीरीज हैं, एक less than series और एक more than series। ध्यान से देखना, a simple frequency distribution tells us the frequency of a particular class. However, if we are interested in knowing the total number of observations, getting a value less than or more than of a particular value of the class, then such simple frequency tables, these tables they fail to furnish such information. जो normal frequency table है वो नहीं बता, वो मैं पूछ रहा हूँ कि अच्छा 0 to 10 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं बता देगी, 10 to 20 बता देगी, 20 to 30 बता देगी। मैं पूछ रहा हूँ अच्छा 40 के अबव कितने बच्चों के मार्क्स है, कह रहे वो सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं, उसमें से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर निकल जाएगी वो इन्फॉर्मेशन। बट वो टेबल डायरेक्टली नहीं दिखा रही है ऐसी इन्फॉर्मेशन कि अबव 80 कितने बच्चों के मार्क्स है, तो 80 to 90 अलग है, 90 to 100 अलग है, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा अबव 80 कितना है, निकाला तो जा सकता है, बट सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल वो दिखा नहीं रही है। उसके लिए क्या आया, क्यूमुलेटिव। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड वेरी कन्वीनियंटली विद द हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। Cumulative frequency series is a modification of the simple frequency distribution. It is obtained by successively adding the frequencies of values of the classes according to a certain law. The frequencies so obtained are called cumulative frequencies, abbreviated as CF. Types of cumulative frequency distribution, it can be of two types, less than cumulative frequency और more than cumulative frequency। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, बहुत स्कोरिंग सी चीज है, ध्यान से देखिए। In a less than cumulative frequency distribution, the frequencies of each class interval are added successively from top to the bottom. It represents the cumulative number of observations less than or equal to the class frequency to which it relates. अब जैसे 0 to 10 है, तो less than 10 कितने बच्चों के मार्क्स आए, क्या रेट दो, 10 to 20 है, अब मैं पूछ रहा हूँ less than 20 कितने बच्चों के मार्क्स आए, तो less than 20 तो ये 2 भी है, ये 2 बच्चे भी है और ये 5 भी है, तो less than 20 क्या हो जाएगा, 2 plus 5। less than 30, 2 plus 5 plus 10, less than 40 तो हम ऐड करते जा रहे हैं। In a less than cumulative frequency distribution, frequencies of each class interval are added successively from top to the bottom. तो 2, फिर 2 plus 5, फिर 2 plus 5 plus 10, फिर 2 plus 5 plus 10 plus 12, फिर 2 plus 5 plus 10 plus 12 plus 70। तो लेस देन कैसे निकाला, कोई भी डाउट? नो सर। Always remember, less than cumulative frequencies are associated with the upper class boundaries. तो अगर 0 to 10 में हम less than 10 बोलते हैं, less than 0 नहीं, 10 to 20 में less than 20 लिखेंगे, तो frequencies को add करके क्या आता है, cumulative frequency। क्या है ये less than cumulative frequency? more than in a more than cumulative frequency distribution, cumulative frequencies of each class interval is obtained by finding cumulative totals of frequencies starting from highest value of the variable to the lowest value. तो अब जैसे ये 0 to 10, तो 0 to 10 में क्या था, more than 0 कितने बच्चों के मार्क्स आए, सारे आ जाएंगे। more than 10 कितने बच्चों के मार्क्स आए, सब, excluding those who got less than 10, तो 2 को हटा देंगे टोटल में से, बाकी सारे रह जाएंगे। more than 20 इन दोनों को हटा देंगे,
ध्यान से देखना, तो मोर देन 0 आपके सारे ही आ गए। मोर देन 10 में तो जो 0 to 10 था उसको कंसिडर मत करो। मोर देन 20 में इन दोनों को कंसिडर मत करो, 0 to 10 और 10 to 20 वाले। मोर देन 20 चाहिए हमें, तो मोर देन में क्या देखना है, दे आर एसोसिएटेड विद द लोअर क्लास बाउंड्रीज। तो लेस देन, मोर देन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन दोनों तरीके से आनी चाहिए हमें, ध्यान से देखना। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लेस देन, तो 100 एंड 110 में क्या हो जाएगा, लेस देन 110, लेस देन 120, लेस देन 130, लेस देन 140, लेस देन 150, लेस देन 160। तो जो लास्ट क्लास होगी उसमें लेस देन 160 में सब आ जाएंगे, ये ध्यान रखना है लास्ट में। कोई भी डाउट? तो जैसे था ना 10 + 6, पहले वाले में तो 10 आ गया, फिर 10 + 6 16, अब 10 + 6 + 9 ले लो, यहाँ 16 तक तो ऑलरेडी पहुंच ही चुके हैं, 16 + 9 ले लो। जब मैं थर्ड ले रहा हूं तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो 16 + 9, फिर 25 प्लस नेक्स्ट 11, 36 प्लस नेक्स्ट 3। तो आप एक एक करके बार बार ऐड करो, एक ही बात है, नेट रिजल्ट सेम आएगा। अगर सेम चीज को मुझे मोर देन में कन्वर्ट करना है तो मोर देन 100 क्या है, सारे के सारे। मोर देन 110 क्या है, सारे एक्सेप्ट दीज 10। तो ऐसे हो जाएगा, सारे एक्सेप्ट दीज 10, ये आ जाएगा 30, सारे एक्सेप्ट 6। कैसे कैलकुलेट हो रहा है लेस देन मोर देन? किसी को कोई भी डाउट? No, sir. पक्का? Yes, sir. एक तो हो सकता है कि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन आए, बोलेगा कि लेस देन और मोर देन कैलकुलेट करो। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें लेस देन और मोर देन गिवन होगा, हमें उसको कन्वर्ट करना है नॉर्मल में। ध्यान से देखना बेटा, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये स्टेप है। कन्वर्ट द फॉलोइंग मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू लेस देन फ्रीक्वेंसी या नॉर्मल। तो पहले आप नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे, फिर नॉर्मल से आप लेस देन निकालेंगे, डायरेक्टली लेस देन नहीं। समझ रहे हो? तो मोर देन 40, 140 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, फिर मोर देन 45, तो क्लास विड्थ 5 है। तो पहला क्या हो जाएगा, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75। मोर देन 40, मोर देन 40, 140 स्टूडेंट्स थे, 40 मार्क्स से ज्यादा 140 स्टूडेंट्स के आए, क्लास में 140 स्टूडेंट्स थे, मतलब मैक्स यही है टोटल। मोर देन 45, 127 स्टूडेंट्स के आए, तो कितने बच्चों के 40 से 45 के बीच में आए? 13. 140 माइनस 127। ये पार्ट किसको समझ नहीं आया? राघव, शौर्य? मोर देन 45, 127 स्टूडेंट्स के आए, उसमें से 112 के मोर देन 50 है, तो कितने बच्चों के 145 45 to 50 आए? 127 माइनस 112। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? इससे क्या होगा, आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, फिर आपको लेस देन चाहिए, तो लेस देन 45 कितने बच्चों के हैं, लेस देन 50 कितने बच्चों के हैं, वो हम नॉर्मल टोटल करके कर लेंगे। हो जाएगा या पूरा करके दिखाऊं? हो जाएगा सर। और पर लेस देन को मोर देन करके दिखा दो। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नो सर। क्लियर है सबको? मान्यता, श्रुत, दृष्टि, अनंत, नवशीन, Yes, sir. गौरमेट, रिद्धिमा, यस सर। अश्विता? Yes, sir. चलो, अगर मेरे को लेस देन को कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन नहीं है, मैं क्वेश्चन ओपन कर लेता हूं, एक सेकंड होल्ड। ध्यान से देखना, अगर लेस देन को नॉर्मल में कन्वर्ट करना है तो भी कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड खेल नहीं है, बस ध्यान देना। ध्यान से देखना,
मैं आपको बस एक दो वैल्यूज करके दिखाऊंगा, उसके बाद मेन यही तो समझना ना करना कैसे है। लेस देन 20, लेस देन 40, लेस देन 60, लेस देन 80, क्लासमेट क्या लग रही है हमें शाश्वता? 20. 20। तो पहला क्या हो जाएगा? 0 to 20, फिर 20 to 40, फिर 40 to 60, फिर 60 to 80, 80 to 100। तो लेस देन तो अपर लिमिट होती है, और यहाँ पे लेस देन 100 मतलब लास्ट हो जाएगा मेरे 80 to 100। कोई भी डाउट अभी तक कि क्लासेस कैसे आइडेंटिफाई हुई? No, sir. अब लेस देन 20 10 बच्चों के हैं, तो 0 to 20 में फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? 10। Yes, sir. लेस देन 40 अगर 18 बच्चों के हैं, उसमें से 10 के 20 से भी कम है, तो कितने स्टूडेंट्स के 20 to 40 होंगे? 8। Yes, sir. लेस देन 60 इन टोटल 25 बच्चों के हैं, 25 में से 18 के 40 में से भी कम है, तो 40 to 60 कितने होंगे? 25 minus 80। कोई डाउट? No, sir. लेस देन 80 45 minus 25, 60 to 80 20 हो जाएंगे, फिर 55 minus 45 10, टोटल 10 18 25 45 55। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस देन 100, सबके ही थे लेस देन 100, तो 55। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 55। क्लियर है आपका डाउट शाश्वता? Yes, sir. ओके। तो इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा क्या, कि अगर हम लेस देन को मोर देन में कन्वर्ट करें तो कैसे होगा।